हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ेनिथ एकेडमी ऑनलाइन। आज हम करेंगे एसएससी क्लास 8 का चैप्टर एरिया। इसका हम ये थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। आज हम इसमें प्रैक्टिस सेट 15.3 सॉल्व करेंगे और इट्स ऑल अबाउट ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखते हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन दैट व्हाट इज अ ट्रेपेजियम। The trapezium is a quadrilateral with only one pair of parallel sides. तो यहाँ पे पैरेलल साइड्स है हमारी ये वाली। पैरेलल साइड्स को हम बोलते हैं बेस, ओके, एंड द नॉन पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड एज लेग्स, ओके. Legs can be equal to each other or it may not be equal to each other. So there are like different trapeziums. So on that basis we can say whether they are equal or not. So let's learn about that. तो ट्रेपेजियम को हम ट्रेपेजॉइड्स भी बोलते हैं. So there are three types of trapezoids: isosceles trapezoids, right trapezoid and scalene trapezoid. तो isosceles trapezoids वो होते हैं जिसका leg length equal होता है. Okay, so if you see AB is equal to DC, तो ये जो leg length है ये equal होता है. Okay, ये होती है हमारी non parallel sides, इनका leg length equal है. Now comes right trapezoid. Right trapezoid, as the name suggests, it has a right angle. See, so one leg of the trapezoid that is making right angle to the base, okay, and the other leg is just a normal leg with any angle. Then comes scalene trapezoid, the third one. The scalene trapezoids, उनका जो दोनों legs होता है, they are not equal, plus they are not making any right angle. Also, उन दोनों के जो angles है, which they make with the base, these angles are also different. Okay, so three types of trapezoids are isosceles, right and scalene. Okay, isosceles में दोनों legs length equal होगी, right वाले में सिर्फ एक right angle होगा और scalene में ये दोनों ही चीज नहीं होगी. So let's start with the area of trapezium. Area of trapezium is half of sum of the length of the parallel sides into height. तो ये जो B1 and B2 है ये लेंथ है पैरेलल साइड्स की इनटू हाइट. तो हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी चीज को डिवाइड बाय 2 करेंगे. ओके, इजी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट फॉर दिस चैप्टर. प्रैक्टिस सेट 15.3. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन quadrilateral ABCD length of AB is 13 centimeter. तो लेंथ ऑफ AB मतलब एक बेस हो गया वो 13 सेंटीमीटर है. ओके, लेंथ ऑफ DC is 9 सेंटीमीटर. 9 सेंटीमीटर DC हो गया एंड लेंथ ऑफ AD is 8 सेंटीमीटर. अब जैसे ये है राइट ट्रेपेजॉइड, ओके, तो AD क्या हो जाता है, लेंथ मतलब हाइट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स. ओके, तो हमारा फॉर्मूले के लिए तीनों चीज अवेलेबल है. ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. तो इस ABCD ट्रेपेजियम का जब एरिया निकालेंगे वो क्या होता है, एरिया इज हाफ ऑफ sum of bases, sum of length of the bases B1 plus B2 into height. height क्या है हमारा AD. okay, तो which is equal to half B1 और B2 है हमारा 13 plus 9 into height is 8. okay, equal to half 13 plus 9 होता है 22. okay, into 8 कर देंगे हम. अब 22 into 8 सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 176 और half of 176 becomes 88. So the answer becomes 88 centimeter square. Okay, ये बहुत ही इजी है क्योंकि सारे पैरामीटर्स ऑलरेडी हमें दे रखे हैं और हमें सिंपली एरिया फाइंड आउट करना है. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. So let's start with question number 2. Length of the two parallel sides of the trapezium are 8.5 and 11.5 respectively. Its height is 4.2 centimeter. Find its area. So let's start with naming the trapezium ABCD. And this is a perpendicular drawn from A to DC. Let's name it as E. Okay, so AB becomes 8.5 centimeter.
DC becomes 11.5 centimeter and the height is 4.2 centimeter. So everything is given. We just have to find area. We just have to put everything in the formula. Formula is half of sum of length of the bases into height, which is equal to half 8.5 plus 11.5 into height is 4.2. Okay. Now half of 8.5 plus 11.5 is 20 into 4.2. ओके, अब ये 20 है और ये 4.2 है, तो इसका हम डेसिमल निकाल सकते हैं और ये 20 का जो 0 है ये कट सकता है उससे, राइट? सो विच बिकम्स हाफ ऑफ 2 इंटू 42. ओके, क्योंकि हमने ये 10 मल्टीप्लाई कर लिया 4.2 से. ओके, डोंट ड्रॉ दिस एरो, सिर्फ मैंने आपके समझने के लिए बनाया. 2 और 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया 42. तो ये स्टार्टिंग में वैल्यूज थोड़ी डिफिकल्ट लगी थी, लेकिन सॉल्व करते हुए बहुत ही इजी है. 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 is PQRS is an isosceles trapezium where PQ is 7 centimeter, segment PM is perpendicular to SR and length of SM is 3 centimeter. The distance between the two parallel sides is 4 centimeter. Find the area of PQRS. तो हमारे पास दिया हुआ है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का क्या प्रॉपर्टी होता है? PS मतलब दोनों जो लेग्स है वो इक्वल होंगे, तो मतलब PS इज इक्वल टू QR. ओके, तो ये दो लेंथ इक्वल है, हमें दिया हुआ है. अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में यही है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में यही प्रॉपर्टी होता है कि ये जो ट्रेपेजियम है इसको सपोज अगर मैं यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये बीच का एक रेक्टेंगल आ गया और ये जो दोनों ट्राइंगल है साइड के वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ सपोज N, तो ये दोनों चीज इक्वल हो जाएगी और ये मेरे पास बीच का एक रेक्टेंगल है रह जाएगा. ओके, तो अब हमारे पास दिया हुआ है PQ का लेंथ 7 सेंटीमीटर है. ओके, तो इसका मतलब MN का लेंथ क्या हो जाएगा? ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है, PM का लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो फिर अगर SM 3 है तो ये NR क्या हो जाएगा? ये भी ऑटोमेटिकली 3 सेंटीमीटर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है. ओके, तो अब हमारे पास एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए? लेंथ ऑफ सम ऑफ बेसिस. ओके, और उसके बाद हमें क्या चाहिए? हाइट. तो हमारे पास हाइट है 4 सेंटीमीटर और दोनों पैरेलल साइड है हमारे पास, एक है 7 और एक है 3 प्लस 7 प्लस 3, ये पूरा. ओके, तो हमारे पास दोनों साइड्स आ गई है, नॉन पैरेलल साइड्स, और हमारे पास हाइट है, तो हम एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, अब हम इसको लिख लेते हैं एक बार. तो गिवन PM is equal to 4 centimeter. Okay, PQ is equal to 7 centimeter. SM is equal to 3 centimeter. In rectangle PQNM, okay, PQ is equal to 7 centimeter. So MN is equal to 7 centimeter. क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है. ओके, और PM is equal to 4 सेंटीमीटर, तो QN भी हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर. ओके, 4 सेंटीमीटर. तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए therefore SM is equal to 3 centimeter. So we can write here SM is equal to 3 centimeter. So NR becomes 3 centimeter. ओके, तो अब हमारे पास NR आ गया है. ओके, हमारे पास MN आ गया है और हमारे पास SM ऑलरेडी था यहाँ पे, राइट? तो अब हम लिखेंगे SR is equal to SM plus MN plus NR
which is equal to 3 plus 7 plus 3 which is equal to 13 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, वापस एरिया निकाल देंगे। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ b1 plus b2 into h, ओके, विच इज इक्वल टू हाफ b1 और b2 क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर है pq और sr है 13 सेंटीमीटर, और इसको हम हाइट से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4, 7 प्लस 13 क्या हो जाता है 20, तो इज इक्वल टू हाफ ऑफ 20 इंटू 4। इसको हम अगर डिवाइड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 10 इंटू 40 विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ओके, ये बहुत ही इजी था। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, इसीलिए इसके दोनों लेग्स, ऑपोजिट लेग्स जो नॉन पैरेलल लेग्स है वो इक्वल हो जाएंगे, और इसकी वजह से SM और NR जो दो ट्राइंगल के छोटे पार्ट है वो भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो बस यही फाइंड आउट करके हमें एक लेंथ निकाल देनी है पैरेलल साइड की, और फिर हमें सारी चीजें फॉर्मूले में डाल के बस आंसर चाहिए। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 15.3 फिनिश होता है, और अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे 15.4। लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। Thank you, friends, and keep learning with Zenith Academy Online.